uh, संजय द्विवेदी जी, जयराम शुक्ला जी, वेंकटेश नायक जी, शैलेश जी को और आत्मादी सबको सुना है. I would like to share my experiences with how we are networking the young journalists or journalists in strengthening the RTA movement in Karnataka. We have got about more than 100 young journalists. RTA is an integral part of the journalists. Yeah. ये सभी जर्नलिस्ट हम क्या कर रहे हैं इधर कर्नाटका में. There is a subject in all colleges, degree colleges. There is a one chapter has been included in the syllabus of in degree colleges here. Likewise, even the journalism students, they are in depth. They are studying RT Act as one of the compulsory subjects for in their academic here. So here, the most of the journalists have been trained in use of RTI. Extensively, they are using it in obtaining information, and they are making stories in almost in a very most both in print and electronic media is concerned here. Even there is a RTI Academy is there. I mean, journalism academy is also there. There is one compulsory subject. They have also made it compulsory subject. Not only that, here each student has to make required number of required number of applications to the public authorities. You should obtain the application information and make a project report on RTA. So this is how young journalists are being trained even before entering the field itself here. They are conducting, they have been, even whenever Venkatesh ji visits Karnataka, Bangalore, normally he interacts with the young journalists, and he's he's conducting awareness programs for the journalists also. This is how young journalists are being regularly trained. Refresher course is being done to them in updating their knowledge, so that RTA movement is being strengthened through these young journalists here in Karnataka here. Karnataka information is one of the information where a journalist was appointed a chief information commissioner. Mr. Suchetana Swarup, who was earlier information commissioner, was appointed as the chief information commissioner and was a journalist also. He was a professor of journalism, but we had a lot of expectation from him as a journalist, but we are not satisfied with his functioning here. Is as a journalist, even he did not take even the press into the confidence here. Even syllabus is there in all colleges here. Periodical seminars on RTA for journalists is being conducted in Karnataka, so that more and more journalists are to publish some social problems in their press here. Refresher courses or RTA awareness programs are being conducted. And earlier there was in Karnataka Freedom Press Freedom Act was there. It was enacted in 1988 by the late Chief Minister Mr. Ramkrishna Hegde, wherein a provision has been made to obtain information directly from the departments by the journalists here. But after enactment of the RTI Act in 2005, that act was withdrawn, and now the journalists are solely depending on RTI for obtaining the information is concerned here. Some of the journalists, particularly one Mr. Sai Manjunath, Shivkumar Bellitate, a leading journalist, extensively using RTI. Not only RTI here, they have written a lot of stories on even on the performance of the information commission in the press, so that even in the information commission, small and medium newspapers or very effectively small and medium newspapers, particularly journalists, they are extensively using RTA in Karnataka is concerned here. And I would like to share one of the story that is an unfortunate story that happened in Karnataka in 2012. A journalist by name Lingaraj, who is also a chief editor of one tabloid called Prachanda, he was brutally murdered
on the morning of 20th of November 2012 before his house only. So this crime was reported in all the newspapers as a headline story was made here. Karnataka High Court took a suo motu case on this murder case, and here on the direction on the supervision of the High Court, investigation was conducted by a special investigating team, and even a special prosecutor was also appointed to monitor the court proceedings. I mean, court proceedings here. During about last year in 2020, 12 members were convicted for life term for involving in this, for abetting and involving in this murder case here. That is the latest case here, and especially in this particular case, Mr. Venkatesh Naik took lot of interest in its monitoring. And one of the good thing Mr. Venkatesh Naik is doing is here, he is personally monitoring all the crimes and assaults against the RT activists that is happening throughout the country here. This is one of the things what is happening here. In Karnataka, 4 channels, electronic media, are headed by an RT activist journalist. You know, that is one of the advantage for us here. They are taking lot of interest in publishing the stories from the information obtained and the RTI. Even majority of the journalists, especially even the press club, they are conducting a regular training awareness programs for the journalists, so that more number of journalists are using RTI for obtaining the information and making the stories in the media here. This is how RTA is being extensively and very effectively used by the media, both print and electronic media in Karnataka, and thereby some awareness is being created even among the general public in use of RTA here. Thank you very much for giving me this opportunity. Dhanyavad. Thank you, Veeresh sir. You have given very deep insights about how the media is working in Karnataka and how they are using this RTI Right to Information Act and publishing important information. Even their life has been threatened time to time, and some sad events which you have already mentioned. And I think we all have to work on this. Not only the media persons, but also RTI workers are continuously being targeted by such people who has been exposed time to time by us. So this is really a challenging issue, and we should force to the government to have some sort of like act which protect the RTI activist and journalist. So thank you very much. And और हम आगे इसमें कार्यक्रम में बढ़ते हैं, और हमारे बीच में माननीय भास्कर प्रभु जी भी बहुत समय बाद जुड़ पाए हैं। तो सबसे पहले तो वो क्लैरिफिकेशन देंगे कि इतने सारे कार्यक्रम में वो जुड़े क्यों नहीं है, और अब फिर कार्यक्रम के विषय में तो अपने विचार वो रखेंगे। सर स्वागत है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप अनम्यूट कर लें। सर आप अनम्यूट करें अपने आप को। आप अनम्यूट हो गए हैं सर क्या? सर अपने आप को अनम्यूट करें। जी जी, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क डाउन हो गया था, मैं फिर बाहर चला गया था, उसी दरमियान थोड़ा सा आपको हाँ जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल स्वागत है सर। हाँ, कोई बात नहीं। पहले मैं कहता हूँ कि मैं हर संडे पार्टिसिपेट होना थोड़ा मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि संडे मेरा कमर्शियल ऑर्गेनाइज
क्योंकि बाय लुकिंग एट द करंट सिनारियो कोविड सिचुएशन में भी फर्स्ट अपील हियरिंग होनी चाहिए। ये हमें एक किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने इसको प्रोएक्टिवली नहीं लिया, इसलिए हमें कोर्ट में जाना पड़ा। लेकिन ये कारण कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुझे लगता है कि ऑर्डर दे सकते हैं और उसके लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये उनकी बात है। अगर उनको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर की ऑर्डर सही नहीं है तो वे कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ऑर्डर देने के बाद में उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये रिकमेंडेटरी नहीं है। पूरे एक्ट में रिकमेंडेटरी इज ओनली इन सेक्शन 20(2). सेक्शन 18 में भी रिकमेंडेटरी नहीं है, सेक्शन 19 में भी रिकमेंडेटरी नहीं है। सेक्शन 18 में पूरी पावर्स है इम्प्लीमेंटेशन करवाने की। अगर वे इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, इंफॉर्मेशन देने की पावर्स नहीं है करके सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। हम इसमें उतने सहमत नहीं है, लेकिन बताया है। लेकिन सेक्शन 18 में वे हर एक नॉन इंफॉर्मेशन नहीं देने वालों के उसके ऊपर इंक्वायरी वे कॉल कर सकते हैं। सेक्शन 18 में इंक्वायरी कमीशन ने इंक्वायरी लेनी है और सेक्शन 20(2) में पब्लिक अथॉरिटी ने इंक्वायरी लेनी है। सेक्शन 18 में अगर इंक्वायरी करने के लिए अगर स्टाफ नहीं है तो डेफिनेटली कमीशन कैन कॉल फॉर द पब्लिक अथॉरिटीज chief inquiry officers assistance and inquire on the officer। यानी मुझे लगता है कि कमीशन के पास पूरे पावर्स हैं इस चीज को वर्चुअल हियरिंग्स लाने में, और मैं कहता हूं ये हो सकता है और जरूर हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी जो बात है कि मैं अभी फिर भी कह रहा हूं कि सेक्शन 4 में अगर सभी इंफॉर्मेशन पब्लिश होते हैं तो एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये सेक्शन 4(4) में ऑलरेडी बता दिया गया है कि इंफॉर्मेशन इतनी पब्लिश होनी चाहिए कि लोगों को आरटीआई एप्लीकेशन करना जरूरी ना पड़े। तो ये भी एक फायदा उसमें लेना चाहिए। और सेक्शन 19(8)(a)(b)(6) के तहरे में सभी ऑर्डर्स दे सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सभी के सेक्शन 4 मैनुअल्स। मैं कहता हूं कि आपको मॉनिटरिंग करने की उतनी स्टाफ नहीं रहेगा, ये मानता हूं, लेकिन ये ऑर्डर जाने से उनको एक झसक बचे बैठेगी कि भाई अभी सेक्शन 4 का मॉनिटरिंग भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स देखेंगे। और एक बार अगर हम कोशिश हम ये करने लगे तो उसका एक दूसरा रास्ता निकलता है। जैसे हमने मुंबई में जब विजय कोवड़ेकर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे तो तब बैकलॉग बहुत था, तो हमने मास क्लियरेंस ऑफ को हमने अपील की, तो विजय कोवड़ेकर ने एक्सेप्ट किया और बहुत की इंफॉर्मेशन आरटीआई जो सेकंड अपील थे मास क्लियरेंस में क्लियर किए। तो तभी यही प्रश्न आ गया कि अगर मास क्लियरेंस के लिए अगर जैसे लोक अदालत में होता है मास क्लियरेंस के लिए अगर रहेंगे तो हमारे पास स्टाफ नहीं है उतना, तो मैंने कहा आप ऑर्डर तो दीजिए, स्टाफ का बाद में हम सोच सकते हैं, या आपको सिटीजन्स लोग हेल्प करेंगे। तो उसके बाद में हमने कम से कम 10,000 फाइल्स उनको बाइफरकेट करके दिए थे, कंप्लेंट में कौन से आएंगे, फर्स्ट अपील में कौन से आएंगे, और अपील लेने की कोई जरूरत नहीं है या कंप्लेंट देखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे फाइल्स को हमने बाइफरकेट करके दिए। तो ये कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आएगा वंस द इम्प्लीमेंट एक ऑर्डर निकलता है। तो अगर आप सोचिए अगर कोर्ट अगर देखता रहे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देखता रहे कि ये इम्प्लीमेंट होने में क्या करेंगे हम, उसके देर में क्या करेंगे हम, ऑर्डर नहीं दे, ऐसे तो नहीं होता है ना। ऑर्डर देना इज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर जॉब, इम्प्लीमेंट इज द गवर्नमेंट जॉब, and the information commissioners can come together and take out some type of an amicable solution. See, information commissioners are considered, I still say information commissioners are the only people who we can expect they are ambassadors of the RTI. इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आरटीआई के विरोध में काम करेंगे ऐसे हम सोच ही नहीं सकते हैं, और वे करेंगे नहीं ऐसे ही हम सोचेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर the order they or nay they, any information commissioner, if it is under his jurisdiction,
at least he can give an order in my jurisdiction. All the first appeals will be conducted virtually, or option of virtual hearing will be provided. If that is done, it will be an example setter and the matter can go ahead, and that is what I feel so. और जर्नलिस्ट लोगों ने यूज करना या कैसे यूज कर रहे हैं, जूनियर जर्नलिस्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वे सिर्फ सोचते हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन करें और 30 दिन में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके एक्ट को अभी भी वे नहीं सीख रहे हैं, ना ढंग से पढ़ रहे हैं, ना उनको मालूम है। और इतनी बार हम कहते हैं कि सोशल ऑडिट की पावर्स है, सेक्शन 19(8) ये बी के 6 की पावर्स हैं, सेक्शन 4 में क्या होना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जब तक पूरे आरटीआई को एक्ट को 2 या 3 बार जर्नलिस्ट नहीं पढ़ेंगे, वे उसको ढंग से वे पत्रकार भी नहीं कर पाएंगे ना, और उन लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं उस रिपोर्टिंग से तहत गलत डिसीजंस भी आ सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी क्या बाहर चल रहा है उस हिसाब में डिसीजन देता है, ना एक्ट पढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी जजमेंट्स दिए इन दी होलिस्टिक सेंस ऑफ वे में आरटीआई एक्ट को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। वे बस अपने मैं ये बोलना शायद जैसे शैलेश गांधी जी ने कहा, हम ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते रहे, हमको अंदर डाल देंगे। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखना भी जरूरी है। वे रिस्पेक्टफुली भी डिसएग्री करके भी हम बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्ट में, सूचना अधिकार के एक्ट में ऐसे बहुत से पावर्स हैं जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने ये यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट की कोशिश कर सकते हैं, और ये हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है कि वर्चुअल information commissioner is only in one clause, and that is 20(2). That's all. बाकी पूरे एक्ट में किधर भी recommendatory नहीं है. It is to be implemented by the government. If they disagree with your order, then it is the government's thought process whether to go to the court. Like मेरे एक RTI टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बनी थी, वैसे स्टेट में भी बनाना चाहिए, ऐसे रत्नाकर गायकवाड़ ने ऑर्डर दिए थे। It was not recommendatory. It was order under the section 19(8)(b), where it is very clearly written that ये recommendatory नहीं है। अभी recommendatory रहता तो वे disagree कर सकते हैं, वो recommendatory नहीं है, इसलिए उनको वे सिर्फ एक कमिटी बनाने के लिए भी वे हाई कोर्ट में जाके उसको स्टे लेके बैठे हैं। तो मैं कहता हूं कि इट्स नॉट सो इजी दैट टू कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के ऑर्डर्स को वो ना बोले। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की इंप्लीमेंट नहीं होती है तो उन्होंने उस चीज के बारे में नोटिस भी भेज सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने उनके ऑर्डर के ये कमिटी बनाने चाहिए करके बोले, इम्प्लीमेंटेटरी जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए जो स्टेट को बताया था, वो 2 बार उन्होंने लेटर भेजा, 2 बार एक्सटेंशन पूछ रहे थे, तीसरी बार वे कहा कि ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर पीछे पड़ रहे हैं, तो वो जाके हाई कोर्ट में लेके आराम से बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स पॉसिबल, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन मेक यूज ऑफ द सेक्शन 19(8)(b) and give directives that under the present situation of the COVID and also in the future times, it is very feasible for to conduct virtual hearings, or choice be given to the applicant for conducting a virtual hearings, which will save the expenditure, budgetary part, time waste नहीं होगा, और public authority का officers का भी time बच सकेगा, and that is what I will put forward here. And information commissioner should take these suggestions into cognizance and go ahead with it. Thank you very much. धन्यवाद भास्कर प्रभु सर, आपने बहुत ही, आप 2-3 कार्यक्रम में आप समय नहीं निकाल पाए क्योंकि आपको व्यस्तता रहती है, लेकिन जब भी आप आए आपने बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात रखी है, और आपने बिल्कुल मोरल को हाई करने वाली आपने बात कही है। और हमेशा जब आप आते हैं तो हमें एक आत्मविश्वास जागृत होता है, क्योंकि आपकी बातें बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द एक्ट होती है, बिल्कुल पॉइंट टू द एक्ट होती है। और इस तरह से आपने जो बात कही है, और मुझे उम्मीद है कि इस पर विचार करेंगे माननीय महोदयगण।
अब कार्यक्रम में हमें लगता है कि हम हमारे सभी जो वक्ता थे उन्होंने मैं अपनी एक बीच में हाँ बोलना चाहता हूँ, मैं जी बीच जी में जी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी बात एक रखना चाहता हूँ। मुझे सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से एक गुजारिश है कि जब भी उनके पास आरटीआई के सेकंड अपील्स आते हैं, तो मैं कहता हूं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है वो सेक्शन 4 में आता है कि नहीं। सिर्फ सूचना मिली कि नहीं ये देख के उन्होंने डिसीजन देना, ये मैं सही नहीं समझता हूं। वो तो है ही है, लेकिन जब आरटीआई सेकंड अपील आती है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इंफॉर्मेशन जो पूछा है ये सेक्शन 4 में बैठता है कि नहीं, whether it falls into the section 441। मैं कहता हूं कि समझिए कि मैं कलम भी बोलना चाहता हूं। सेक्शन 41B रोमन 1, रोमन 3, रोमन 2, रोमन 4 एंड रोमन 5, ये और बाद में जो है स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज जो 6 है, ये बैठता है कि नहीं। बेसिक मुझे लगता है कि हर एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक क्वेश्चनर बनाना चाहिए और चेकलिस्ट बनाना चाहिए। उनके जो सबऑर्डिनेट्स है उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये चीजें इसमें बैठती है क्या। अगर ये बैठती है तो उनके पास जब पेपर जाते हैं इसकी टिप्पणी उनके थ्रू से जाना चाहिए। तब क्या होगा, अगर ये सेक्शन 4 में बैठने आने वाले इंफॉर्मेशन को अगर मुझे आरटीआई एप्लीकेशन करना पड़ रहा है, इट्स वायलेट्स द सेक्शन 4(4), whereby there is no necessary to make an RTA application if it would have been come under the section 4 में आता है। अगर मुझे RTA एप्लीकेशन करना है ना, मुझे मेहनत लेनी पड़ रही है। तो ऐसे हर एक RTA एप्लीकेशन को कमीशन ने एप्लीकेंट को एटलीस्ट एक 200 रुपया की कंपेंसेटरी ऑन इट्स ओन शुड बी प्रोवाइडेड, बिकॉज आरटीआई एप्लीकेशन सिर्फ 10 रुपए का काम नहीं है, या हरियाणा में सिर्फ 50 रुपए का काम नहीं है। वो अपना निजी वक्त निकालता है, वो भले ईमेल में भेजे या ऑनलाइन में भेजे, उसका समय निकालता है। समय निकालने के बाद में टाइपिंग करने के लिए एक 50 रुपए जाते हैं। वो आवेदन देने के लिए अपने उस पब्लिक अथॉरिटी में जाता है तो उधर भी एक 50 रुपए जाते हैं। गांव में एक जगह से एक जगह जाने के लिए अगर टमटम या ऑटो रिक्शा या कुछ करना है तो उसको 100 रुपए खर्च होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इफ दे take this as a proactive step, that every second appeal, if it comes under the section 4, why a person should have been forced to make an RTA application, सेक्शन 4 में पब्लिश होना चाहिए। अगर पब्लिश हुआ रहेगा तो उसका प्रिंट आउट इमीडिएटली निकाल देना चाहिए, या आरटीआई के में से जो जवाब आता है एग्जैक्ट लिंक और वो चीज बतानी चाहिए। ये हमने महाराष्ट्र में हमने जीएडी को समझा के सर्कुलर्स निकलवा के लिए हैं कि जब भी सेक्शन 4 की इंफॉर्मेशन जैसे आती है, अगर वो आरटीआई एप्लीकेशन को जवाब देते हैं वेबसाइट में उपलब्ध है, ऐसे सिर्फ नहीं बोला जा सकता है आरटीआई में वेबसाइट में उपलब्ध है। उन्होंने ये बोलना चाहिए कि हाँ ये आरटीआई वेबसाइट में उपलब्ध है और ये लिंक है, एग्जैक्टली वो लिंक क्लिक करने के बाद में उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना चाहिए। ये एक कोशिश अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स करते हैं तो ये पब्लिक अथॉरिटी को भी एक चेक हो जाएगा कि भाई इंफॉर्मेशन कमिश्नर आज किसी को छोड़ने वाले नहीं है। They are really working as per to the requirement of the RTA Act, and they are ambassadors of the RTA. Thank you. बिल्कुल सर, धन्यवाद। और हमारे रीवा संभाग में तो इनफैक्ट इससे थोड़ा सा एक कदम आगे ही हुआ है, और हमने तो 41B के संभाग में तो नहीं, भी तो हमने डिस्ट्रिक्ट में किया है। संभवतः संभाग में भी हमने आवेदन और इसका शिकायत तो किया हुआ है, और ये लॉकडाउन के कारण ये थोड़ा हैंग हो गया है। लेकिन 41B के जो 17 पॉइंट्स मैनुअल जिसकी हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, वो हम जल्दी लागू करवाएंगे अपने संभाग स्तर पे, और उम्मीद करेंगे कि जो CIC हैं मध्य प्रदेश के, वो पूरे स्टेट में भी इसको लागू करवाएंगे, करवाना चाहिए उनको। उनके वैसे तो ये सभी के जुरिडिक्शन में है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं चूंकि बड़े बदलाव के लिए संभवतः वो जिम्मेदार हैं, अभी जैसा भी अपन समझे आगे। कार्यक्रम में हम आगे आते हैं, और माननीय राहुल सिंह सर को यहाँ पे हम अध्यक्ष महोदय को कार्यक्रम के इनवाइट करते हैं एक बार पुनः, कि हमारे जो नए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए जो कंसिस्टेंटली जुड़े रहते हैं कार्यक्रम के अंत तक और इतना धैर्य के साथ सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यदि आप लोग नहीं होंगे तो ये कार्यक्रम बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट वक्ताओं से ज़्यादा हम आपको बधाई धन्यवाद देते हैं, जो हमारे जुड़े हुए साथी हैं, जो इसमें जुड़े रहते हैं इतने धैर्य के साथ में।
तो आप सभी को वो संबोधित करें, माननीय राहुल सिंह सर, और प्रश्न अब कार्यक्रम में लेना प्रारंभ। एक बार मैं थोड़ा सा इसको अनम्यूट करके फिर से सबको अलाउ करता हूँ। हाँ, अभी आप लोग सब अपने आप को अपने से अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन कृपया एक एक करके ही करेंगे जी। माननीय राहुल सिंह सर। अमरेश सिंह जी, आपने काफी समय से ये हाथ उठाया हुआ था, आप बताइए। आपकी आवाज